Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to see procedure to trace the Cartesian curve. Okay, so here first of all we are going to see basic concepts. In that, multiple points. What is multiple points there? A point through which more than two branches of curve pass is called as multiple point. Okay, यानी कि अगर सपोज यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और यहाँ से हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, सो थ्रू दिस पॉइंट मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ द कर्व आर पासिंग. ओके, एक ही पॉइंट में से बहुत सारे कर्व के ब्रांचेस जो है वो पास हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ मल्टीपल पॉइंट. ओके, नाउ डबल पॉइंट, a point through which only two branches of the curve pass is called as double point. Okay, so here if suppose this is your curve, now at this point only two branches of the curve are passing, so this is double point, जहां पर से कर्व की सिर्फ दो ब्रांचेस पास हो रही है. Now in this double point there are two types, cusp and node. A double point for which there is only one tangent is called as cusp. Now you can see here, this is a double point and this is the tangent to the curve at this point. Okay, so these are the two branches of the curve and this is the common tangent to the curve. It means for two branches of curve there is only single tangent. So at that point you say there is a cusp. Okay. Then node. A double point for which there are two distinct tangents is called as node. For example, suppose I am having this curve. Okay. A tangent to the curve at this point and at the same point here is the tangent to the curve. Okay, see here, this is the one branch of the curve where tangent is this line and this is another branch of the curve where tangent is this line at the same point. This is a double point, two branches of the curve passing through it. Okay, so as you can see at this point there are two different tangents, so this is called node. Is it clear? Next we are going to see, now you have to remember all these basic concepts. What is a multiple point, what is a double point, and if there is a double point, is there any cusp or node, that you have to check. Okay, next we are going to see procedure here. There are 6 points to trace the curve. In that, first is symmetry. In symmetry, there are 6 sub-points. One by one we are going to see here. If the curve contains even powers of y, then the curve is symmetric about x-axis. Now for example, I have taken here example x square plus y square equal to a square. As you can see, the power of y is 2, that is even. So it says the symmetry about x-axis. Now what is symmetry? Symmetry, that is a mirror image. अब यहाँ पर y की even powers है, तो symmetry x-axis पर है. So this is your x-axis, right? Now see here, along this x-axis, उसके ऊपर ये जो half circle है, same नीचे half circle है. If we flip this image on this x-axis, okay, so this upper half exactly lies on the lower half, so we can say there is a symmetry about x-axis, right? Now here also there is a even power of y. Now if you see x-axis, along x-axis upper half and lower half both are same, mirror image of each other, so there is a symmetry about x-axis. I have equation and I have curve here. Okay. Now see what is a curve tracing.
actually we are having equation and we are going to draw the curve there. But we all know the standard curves here like parabola, circle, ellipse, hyperbola. अगर ये equations हम लोगों को दिए गए तो उस पर से हम इनकी curves draw कर सकते हैं. But other than these अगर हमारे पास equations है तो वहाँ पर हम curve कैसे draw करेंगे? So for that we are going to trace some points. We are going to find some points and with the help of that points we are going to trace the curve. Okay? अब यहाँ पर ये जो examples मैंने लिए हैं ये equations और उनकी curve हमें पता है. So according to this point, how it satisfies that I am going to explain you. For example, I have taken these two. Okay? Now next, if the curve contains even powers of x, then the curve is symmetric about y-axis. Now see here in circle, even power of x, x raised to 2, 2 is even. So you can see along y-axis there is symmetry because जो y-axis है उसकी राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो हाफ सर्कल है, राइट? सेम पोर्शन लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. So there is a mirror image, right? So we can say there is a symmetry about y-axis. But here in parabola, along y-axis अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो वहां पर जो पैराबोला है वही सेम पैराबोला यहाँ पर राइट हैंड साइड में नहीं है. तो इसका मतलब यहाँ पर y-axis को सिमेट्री नहीं है. You can check here from equation also. x की पावर यहाँ पर जो है वो 1 है. 1 is odd, right? So there is no symmetry about y-axis. This is how it helps to find a symmetry about x-axis and y-axis. Next, if the curve contains even powers of x and y both, then the curve is symmetric about both axes. For example, this circle. x और y दोनों की even powers है. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि about x-axis and y-axis, we are having symmetry there for circle. But here in parabola, सिर्फ y की even power है, तो हमें सिर्फ along x-axis symmetry मिली है, right? y-axis के लिए symmetry नहीं है. Okay? Next point, if we replace x with y and y with x, अगर हम यहाँ पर x को y से और y को x से replace करें और कर्व में कोई change नहीं हो रहा है तो symmetry about y equal to x line होती है. Now what is y equal to x line? Let me show you. This is your y equal to x line. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके ऊपर ये जो हाफ सर्कल है सेम इसके नीचे है. यानी कि अगर मैं यहाँ पर x को y से रिप्लेस कर दूं और y को x से रिप्लेस कर दूं, इसे सॉल्व करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो सेम इक्वेशन है जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है. इसीलिए यहाँ पर हमें y इक्वल टू x लाइन पर सिमेट्री मिली. पर यहाँ पर पैराबोला के लिए देयर इज नो सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू x लाइन, राइट? See, this is y equal to x line which passes through origin. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लाइन के ऊपर जो कर्व है वही सेम इसके नीचे नहीं है. So y equal to x line पर सिमेट्री नहीं है. Let's cross check here. अगर हम y को x से रिप्लेस कर दे और x को y से रिप्लेस कर दे तो ये सेटिस्फाई करता है क्या? देखो नहीं. x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. यहाँ पर आपकी टोटल कर्व ही चेंज हो रही है. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये डी पॉइंट समझ में आया. इफ वी रिप्लेस x with y and y with x, there should not be any change in equation. Then only you can say symmetry about y equal to x line. Next point we are going to see, if we replace x with minus y and y with minus x, no change in equation again. यानी कि यहाँ पर symmetry about y equal to minus x line होगी फिर. Let's draw that. ओके, अब अगर आप देखोगे तो ये साइड में जो कर्व है वही सेम यहाँ नीचे है. सो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के लिए भी यहाँ पर सिमेट्री सर्कल को. पर यही अगर हम पैराबोला के लिए चेक करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे जो कर्व है वही सेम कर्व यहाँ ऊपर नहीं है. यानी कि पैराबोला के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के लिए सिमेट्री नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल
उन्होंने कंडीशन क्या बोली है, इफ वी रिप्लेस x विथ माइनस वाई एंड y विथ माइनस एक्स। यहाँ पर ट्राई करके देखो, x विथ माइनस वाई और y विथ माइनस एक्स रिप्लेस किया तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल इक्वेशन फिर से मिल गया। यहाँ पर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए y इक्वल टू माइनस एक्स के लिए सिमेट्री है। पर यहाँ पर अगर मैं ये ओरिजिनल इक्वेशन में y को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं और x को माइनस वाई से रिप्लेस कर दूं तो ये माइनस का स्क्वायर होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये टर्म निगेटिव हो जाएगी। पर यहाँ पर टोटल कर्व ही चेंज हो रही है, पैराबोला ही चेंज हो रहा है, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के लिए सिमेट्री नहीं है। ओके, अभी नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू चेक, if we replace x by minus x and y by minus y, no change in equation again, then curve is symmetric in opposite quadrant. Opposite quadrant means, let me show you here. If you see, this part and this part are same. Opposite quadrant में ये देखो ये portion same है. There is a symmetry, right? अब यहाँ पर जो coordinate system होती है first quadrant में वो xy होती है और यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वाई होती है, यानी कि x को अगर आप माइनस एक्स से और y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा तो सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट होगी। दैट इज अ कंडीशन टू चेक वेदर देयर इज अ सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। ओके, और यहाँ पर अगर आप लोगों देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका कर्व का पोर्शन प्रेजेंट है, पर यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि सिमेट्री अपोजिट क्वाड्रेंट में मिले, राइट। और ये कंडीशन यूज करके भी इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करके देखो, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा पैराबोला, और ये इक्वेशन सर्कल का ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन चेंज नहीं होगा। ओके, सो दीज आर द 6 पॉइंट टू चेक द सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस, y इक्वल टू x लाइन, y इक्वल टू माइनस x लाइन, बोथ एक्सिस एंड इन अपोजिट क्वाड्रेंट। ओके, अभी हम नेक्स्ट जो भी इक्वेशन हमें दिया होगा ट्रेस करने के लिए, सेकेंड पॉइंट उसमें हमें ट्रेस करना होता है ओरिजिन, क्या वो गिवन कर्व ओरिजिन में से पास होती है, राइट, वो हमें चेक करना होता है। तो कैसे चेक करेंगे, अगर सपोज कोई पॉइंट वो कर्व पर है या वो पॉइंट में से वो कर्व पास होती है तो इसका मतलब क्या होता है, दैट पॉइंट सैटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व, दैट इज द मीनिंग। हाँ, अब यहाँ पर देखो ये जो सर्कल है आपका ये ओरिजिन है, इसमें से पास नहीं हो रहा है, पर ये जो पैराबोला है ये जो ओरिजिन है इसमें से पास हो रहा है, ये आप देख सकते हो। अब ये कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं, अगर हमें ये चेक करना है कि कोई गिवन कर्व ओरिजिन में से पास हो रही है या नहीं हो रही है, तो सिंपली हमें वहां पर x और y को 0 पुट करना होता है, और अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, तो वहां पर हम बोलेंगे कि कर्व ओरिजिन में से पास हो रही है। ओके, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू चेक वेदर द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन और नॉट, राइट। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं x और y को 0 पुट कर दूं तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रही है पर राइट हैंड साइड 0 नहीं हो रही है, इसका मतलब इक्वेशन जो है वो सर्कल का इक्वेशन जो है 0,0 पॉइंट उससे सेटिस्फाई नहीं करता। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्कल जो है वो ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा है। पर अगर हम ये पैराबोला के लिए चेक करें y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन इसे सेटिस्फाई करता है, यानी कि आपका पैराबोला ये ओरिजिन में से पास हो रहा है, राइट। दीज आर द स्टैंडर्ड कर्व्स, जहां पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये पॉइंट्स जो हम चेक कर रहे हैं तो कैसे चेक कर रहे हैं। ओके, देन थर्ड पॉइंट हमें वहां पे चेक करना होता है टेंजेंट एट ओरिजिन। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, अगर वो कर्व ओरिजिन में से पास हो रहा है, इफ दैट कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन देन ओनली यू हैव टू फाइंड द टेंजेंट एट ओरिजिन। यहाँ पर देखो सर्कल ओरिजिन में से पास हो ही नहीं रहे, तो यहाँ पर हम इसके लिए टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड कर ही नहीं सकते, राइट। पर ये जो पैराबोला है ये ओरिजिन में से पास हो रहा है और इसके लिए हम टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। अब टेंजेंट क्या होती है कि वो पॉइंट में वो लाइन सिर्फ उसे टच करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती, दैट इज अ टेंजेंट, राइट। अब यहाँ पर देखो, ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो रेड लाइन मैंने यहाँ पर शो की है दैट इज अ टेंजेंट टू दिस कर्व एट ओरिजिन, राइट।
तो ये जो है ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 लाइन इसकी टेंजेंट है पैराबोला की, दैट इज द मीनिंग है। तो अब हम यहाँ पर चेक कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड दैट इक्वेशन। अगर हमें टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड करनी है तो हमें जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होती है उसे इक्वेट करना होता है 0 के साथ। ओके, अब आप ये इक्वेशन को देखो, इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है। अब डिग्री हम सिर्फ वेरिएबल्स की काउंट करते हैं, तो यहाँ पर डिग्री है 2 और इसकी डिग्री 2 है, और कांस्टेंट जो है इसकी डिग्री हमें काउंट नहीं करनी होती है। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों भी लोवेस्ट डिग्री होगी, दोनों की डिग्री 2 है, इसको इक्वेट करो 0 के साथ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर होगा, और इस पर से हमें एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी प्लस माइनस आई वाई। अब ये जो है ये रियल एक्सिस है एक्स और वाई, और ये जो पॉइंट्स है ये इमेजिनरी पॉइंट्स है, और इमेजिनरी पॉइंट्स हम रियल एक्सिस पे शो नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो आपकी सर्कल है इसको टेंजेंट नहीं है एट ओरिजिन। ओके, सेम अब हम ये पैराबोला के लिए चेक करते हैं यूजिंग कंडीशन लेट्स फाइंड इट्स टेंजेंट। अब यहाँ पर देखो ये जो वाई स्क्वायर है इसकी डिग्री 2 है और ये जो टर्म है इसकी डिग्री 1 है, तो इसमें जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है दैट इज 4a x इक्वल टू 0, तो इस पर से हमें इक्वेशन मिलेगा x इक्वल टू 0। आप खुद देख सकते हो कि हमने अभी इक्वेशन फाइंड किया था, x इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। आपको लोवेस्ट डिग्री टर्म को कंप्लीटली इक्वेट करना है 0 के साथ। ओके, अभी आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड असिम्पटोट टू द कर्व। अब असिम्पटोट क्या होता है, इट इज अ टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हियर ये जो लाइन है दैट इज द असिम्पटोट। असिम्पटोट यानी कि यहाँ पर देखो ये जो कर्व है ये ओरिजिन में से यहाँ पर जा रही ऊपर, राइट, तो ये जो लाइन है जब ऊपर जाएगी तो ये लाइन को कभी क्रॉस नहीं करेगी, यानी कि x इक्वल टू a ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे ये कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हाँ, पर ये जैसे जैसे ऊपर जाएगी जब इंफिनिटी के लिए जाएगी तब ये दोनों लाइन एक दूसरे को सिर्फ टच करेंगी, तो इसे बोलते हैं असिम्पटोट। ओके, टू द कर्व। अब यहाँ पर असिम्पटोट एक तो पैरेलल टू x एक्सिस हो सकती है या फिर पैरेलल टू y एक्सिस हो सकती है। ओके, अगर असिम्पटोट हमें पैरेलल टू x एक्सिस फाइंड करनी है तो हमें हाईएस्ट डिग्री टर्म इन x सर्च करनी है और उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसे हमें इक्वेट करना है 0 के साथ। यहाँ पे फर्क देखो, टेंजेंट के लिए हम टोटल टर्म को इक्वेट करते हैं, पर असिम्पटोट के लिए वो हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। ओके, और अगर मुझे पैरेलल टू y एक्सिस फाइंड करना है तो y की हाईएस्ट डिग्री टर्म को आपको वो इक्वेशन में सर्च करना है और उसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है 0 के साथ। ओके, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द असिम्पटोट टू द कर्व। अब देखो ये जो कर्व है इसका ये इक्वेशन है। ओके, और अगर मुझे ये कर्व के लिए वहां पर असिम्पटोट चेक करना है तो x की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, देखो यहाँ पर x क्यूब है, तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 को अगर मैं इक्वेट करूँ 0 के साथ तो कांस्टेंट को हम 0 के साथ कभी इक्वेट नहीं कर सकते, 1 इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता। और जब कांस्टेंट इक्वल टू 0 होता है तब आपको एक बात समझनी है कि वहां पे असिम्पटोट नहीं है, यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है x की उसके कोएफिशिएंट को हमने जब इक्वेट किया तो समझ में है कि वहां पे पैरेलल टू x एक्सिस असिम्पटोट नहीं है। ओके, और पैरेलल टू y एक्सिस के लिए तो ये y की टर्म है, राइट, तो उसकी हाईएस्ट डिग्री a की टर्म है 2 है और उसका जो कोएफिशिएंट है वो a माइनस x है, और अगर हम यहाँ पर a माइनस x को इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो आपको x की वैल्यू मिलेगी a। तो यहाँ पर ये कर्व के लिए x इक्वल टू a इज द असिम्पटोट। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो x इक्वल टू a के लिए कर्व इंफिनिटी को जा रही है और दोनों एक दूसरे को एट इंफिनिटी टच कर रही है, सो दैट इज द असिम्पटोट टू द कर्व एट इंफिनिटी। ओके, अभी नेक्स्ट हमें यहाँ पर चेक करना है रीजन ऑफ अब्सेंस। रीजन ऑफ अब्सेंस क्या होता है, यानी कि हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि कौन से रीजन में कर्व अब्सेंट है, वहां पे कर्व प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो हमें उसके लिए जो गिवन कर्व होती है उसे एक्सप्रेस करना होता है y स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, यानी कि इसे एक्सप्लिसिट फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है।
y की टर्म एक साइड में कर दो, x की टर्म एक साइड में कर दो। फिर आपको वहां पर x की वैल्यूज को फाइंड करना है जिसके लिए y स्क्वायर निगेटिव होगा। ओके, फिर वो वैल्यूज के लिए x की वहां पे कर्व अब्सेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कर्व है ये है y स्क्वायर a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, अब यहाँ पर हमें x की पहले तो इसे f ऑफ x के फॉर्म में लिखना है, राइट, एक्स क्यूब अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पर कितने फैक्टर्स है x के, देखो ये पहला फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर है। अब x क्यूब है, x क्यूब निगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यूज निगेटिव होगी, क्योंकि निगेटिव का क्यूब निगेटिव होता है, यानी कि जब x लेस देन 0 होगा, राइट, तब ये फैक्टर आपका निगेटिव हो जाएगा। और अगर ये फैक्टर निगेटिव हो गया तो इसका मतलब y स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे x लेस देन कर्व अब्सेंट है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो साइड है ये पूरी x लेस देन 0 है, यानी कि यहाँ पर ये रीजन में आप देख सकते हो कि ये जो कर्व है ये इस रीजन में प्रेजेंट नहीं है, राइट। और दूसरा a माइनस एक्स, यानी कि ये फैक्टर कब निगेटिव होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन a होगी, यानी कि 2a, 3a, 4a, इसके लिए ये फैक्टर निगेटिव हो जाएगा और ये निगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पर x ग्रेटर देन a नहीं चलेगा। आप लोग देख सकते हो x ग्रेटर देन a के लिए ये साइड में कर्व प्रेजेंट नहीं है, ये असिम्प्टोट है तो कर्व इसके बाहर नहीं जा सकती, राइट, यानी कि कर्व सिर्फ ये इतने ही रीजन में यहाँ पर प्रेजेंट है जो आप देख सकते हो। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द रीजन ऑफ एब्सेंस। ओके, एंड देन लास्ट पॉइंट यहाँ पर आपको चेक करना है कि कर्व x और y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, दैट वी आर गोइंग टू चेक, राइट। अब अगर हम ये कर्व के बारे में बात करें, y स्क्वायर a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, अब मुझे ये देखना है कि x को वो कर्व कहाँ इंटरसेक्ट करती है, तो आप y को 0 पुट कर दो, x की वैल्यू फाइंड करो। और अगर मुझे देखना है कि y को वो कर्व कहाँ इंटरसेक्ट करती है, तो आप x को 0 कर दो, y की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों पॉइंट के लिए कर्व सिर्फ 0,0 पे इंटरसेक्ट करती है, राइट। और सिमिलरली ये कर्व्स के लिए अगर हम ट्राई करें तो x को अगर 0 पुट किया तो y 0 है, y को अगर 0 पुट किया तो x 0 है, यानी कि पैराबोला भी x और y एक्सिस को सिर्फ ये 0,0 में इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। और अगर हम सर्कल के बारे में सोचे, मैंने y को 0 कर दिया तो x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस a और माइनस a। तो ये हो गया आपका प्लस a और ये हो गया आपका माइनस a, ये x एक्सिस को प्लस a और माइनस a में इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर हम x को 0 कर दे तो y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू प्लस माइनस a। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्लस a और ये माइनस a, तो कर्व y एक्सिस को a और माइनस a में इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। सो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ये 6 पॉइंट फाइंड करने के बाद एट लास्ट आपको वो जो कर्व होगी उसका रफ स्केच ड्रॉ करना है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको ये प्रोसीजर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।